Yes. Are you able to see the PPT, everyone? Yes. Thank you. Okay. So, in the last lecture, we have finished up to the optoelectronic devices, and we have done LED and OLED, and we have seen the advantages, disadvantages, applications of them. Today, we are going to cover another optoelectronic device, and that is kind of photo-based diode, that is PIN diode. Okay. So point in contact diode, it is also called as pin diode. It is a photo based diode, means it depends upon photo or light. Okay. So now let us see the simple construction of pin diode, how it is constructed. So pin diode is having such kind of construction. If we take the horizontal cross section, so here is the region which is exposed to the radiation, which is coated with anti-reflection coating. So you can see the application of interference over here. Then on the layer there is a SiO2 layer and electrical contact. Okay, there is electrodes. Then uh, below SiO2 there is a silicon layer, P-type silicon layer I can say, and then there is an intrinsic lightly doped layer, and then there is N-type silicon layer. Okay, so it's a kind of, okay, I will tell you. So it's a kind of I can say PN junction diode. Okay, which is having intermediate one more layer, which is intrinsic layer. Okay, so जैसे there is P region, there is N region, तो ये P है, ये N है, और बीच में वो P और N टच नहीं हो रहे, उसके बीच में एक और लेयर है जिसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेयर कहेंगे. ठीक है. सो ये पिन भी नाम वैसे ही पड़ा है. इट इज़ पी टाइप, इट इज़ एन टाइप, और उसके बीच में इंट्रिंसिक लेवल. So that is PIN diode. Okay, pin diode. Got it? The meaning of pin. So there is no full form basically of pin. Pin diode is made as such. In between the P and N layer, there is one intrinsic layer, additional layer between the P and N layer of a diode. Okay, so it is a photodiode, basically pin photodiode जिसको कहा जाता है, which depends upon light. When the light will fall upon it, its working, its conduction will change. Okay, so what is the concept? When light will fall over here, this radiations will be utilized by these p side holes. Okay, and then there will be the flow of holes and electrons, and this flow will be depending upon the radiations falling onto this region. ओके, सो ये पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो. समझ में आया सबको पिन नाम कहाँ से आया? PIN डायोड. So that pin is not having any full form. Pin is this P region, N region separated by an intrinsic region in between. Okay, so ये डायोड ही है लेकिन जिसके बीच में एक एक्स्ट्रा का लेयर है P और N साइड के बीच में. That's what is called PIN. Okay, P side, intrinsic middle and N side. So PN जंक्शन डायोड होता है, वैसे ये PIN फोटो डायोड है. ठीक है. Now how this works? So there is a general working and there is an animation also which can let you understand the working. So this is your P region, this is N region, and this is the intrinsic layer. ठीक है, बिटवीन पी एन एन, जहाँ पे दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर्स रहते हैं. ये लाइटली डोप रहती है. इट इज़ हैविंग दिस सिम्बॉल. ओके, इट्स लाइक एलईडी, बस ये एरोज उल्टे हैं. तो एलईडी में लाइट आउट होता है, यहाँ पे लाइट इन होगा. सो इट्स अ लाइट डिपेंडेंट थिंग. ओके, नाउ पिन फोटो डिटेक्टर या पिन फोटो डायोड कैसे काम करता है? The high electric field present in the depletion region causes the photon generation. So when the light will fall over here, the electron and hole pair will form. Okay, so holes p side में add up होंगे, electron n side में add up होंगे. ठीक है. This gives rise to the current flow in the external circuit as photocurrent. तो ये यहाँ पे ये वाले होल्स और इलेक्ट्रॉन जो बन रहे हैं बीच में इंट्रिंसिक में, बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ फोटॉन्स ऑन टू इट,
सो दिस इज कॉल्ड फोटो जनरेशन. ओके, जैसे थर्मल जनरेशन होता है, हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं, वैसे ये फोटो जनरेशन है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते हैं. तो जैसे जितना लाइट आप इस इंट्रिंसिक लेवल के ऊपर डालोगे उतने इलेक्ट्रॉन होल्स के पेयर बनेंगे और वो फिर कंडक्शन करेंगे बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी. एंड दिस इज फोटो करंट. और ये फोटो करंट हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन टू इट. तो यू कैन सी, ये देखो, ये येलो वाला जो है ये रेडिएशन यहाँ पे गिर रहा है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन और एक होल अलग अलग किया, होल इधर गया इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो दोनों ने कंडक्ट किया और करंट बनाया. ओके, so this is a simple concept of photodiode. Okay, the diode which depends on photo means light. सो फोटोडायोड अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसमें से हमने सिर्फ एक देखा, दैट इज पिन फोटोडायोड, जिसमें पी रीजन होता है, एन रीजन होता है और बीच में इंट्रिंसिक रीजन होता है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. इफ इन एग्जामिनेशन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, you can write, you can draw the diagram of construction. And the working is simple. When the photons are falling onto the intrinsic region, the electron and holes are formed. These electron and holes are again then get accelerated towards the battery potential and they flow the current in the circuit. This current is called photocurrent, the current which depends upon light. And in this way, this photodiode will work. जितना ज़्यादा रेडिएशन उतना ज़्यादा करंट बनेगा. Now next kind of photo based thing is solar cell, जिसको हम फोटोवोल्टाइक भी कहते हैं. ओके, अब सोलर सेल और फोटोडायोड बहुत से एक जैसे होते हैं. नाउ कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो यहाँ पे एक एन टाइप का सिलिकॉन का वेफर है, फिर एक पी टाइप का सिलिकॉन का वेफर है, बीच में पी एन जंक्शन डायोड है और ये पूरा का पूरा डायोड एलिमिनेट किया जाता है सनलाइट में. ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, जब यहाँ पे सनलाइट गिरता है तो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होते हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पूरा इस पाथ में घूम के पी साइड में आते हैं. ठीक है, तो ये इस तरीके से देयर इज़ अ जनरेशन ऑफ करंट विद द हेल्प ऑफ फॉलिंग एनर्जी ऑन टू दिस एन टाइप सिलिकॉन लेयर. ओके, सो ये इस बार बैटरी की वजह से नहीं हो रहा, यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई है. देखो यहाँ पे क्या लगाया है, डायरेक्टली एक बल्ब लगाया है जो दिखाएगा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा. इस बल्ब की जगह आप कोई कैपेसिटर या कोई चार्जेबल डिवाइस लगा सकते हो जिससे कि ये स्टोर भी हो सकता है. ओके, तो सोलर सेल या सोलर फोटोवोल्टाइक में जनरली आइदर उसी टाइम पे अगर कंज्यूम करना है तो वो बल्ब लगाओ या पंखा लगाओ, या फिर आपको स्टोर करके रखना है तो यू कैन हैव अ चार्जेबल cell or battery over there. So what is happening, on the inside of the wafer we throw sunlight, the sunlight is absorbed and then the electrons are formed and these electrons are moved through this external path and they get combined with p side again. So in this way the loop is completed and this is the generation of current due to falling energy onto it. Okay, light energy, and this can be stored or this can be consumed on time. Okay, a PV cell, a photovoltaic cell is light illuminated PN junction diode. ये एक PN junction diode ही होता है सिंपली, जिसमें N साइड में लाइट डाला जाता है, which directly converts solar energy into electricity via photovoltaic effect. Photovoltaic effect means generation of electrons on the incidence of photo energy means light energy. A typical silicon PV cell is composed of a thin vapor consisting of an ultra thin layer of phosphorus doped N type and silicon top of a thin layer of boron doped P type. So phosphorus doping is pentavalent doping, that is N type, and boron doping is trivalent doping, that is P type. So this wafer is then illuminated with the sunlight. So when sunlight strikes the surface of the PV cell, photons with the energy above the semiconductor band gap impact enough energy to create electron hole pairs. So simply फिर से वैसे ही हो रहा है, photo generation जिसको कहते हैं. Because of the light energy, the electron and hole pairs are getting formed and these pairs then move in the external part of the circuit and here they can be consumed as electrical energy or it can also be stored. So there are different applications of sensors and detectors. Okay,
अब ये सब एप्लीकेशन हमने देखे थे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, फोटोवोल्टाइक सेल या जिसको सोलर सेल कहते हैं, फिर पिन डायोड देखा, उससे पहले ओ एलईडी वगैरह देखा। अब इसके अलावा भी काफ़ी सिस्टम्स में ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ होते हैं जिनको कहते हैं सेंसर्स एंड डिटेक्टर्स। ओके, तो ये अलग अलग प्रकार के सेंसर्स है, बहुत सारे सेंसर्स है यहाँ पे। सो हार्ट बीट सेंसर जो वाइब्रेशन सेंस करता है, आईआर सेंसर जो इंफ्रारेड रेडिएशन सेंस कर सकता है, ये बेसिकली टीवी वगैरह के रिमोट कंट्रोल्स में होते हैं, जो भी चीज़ें रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होती है वो आईआर सेंसर बेस्ड होती है। ओके, देन आईआर सेंसर रिफ्लेक्टिव टाइप, ट्रांसमिटिव टाइप। ओके, तो ये दो अलग अलग प्रकार के जो सर्किट है, जैसे टच स्क्रीन होते हैं ना, टच स्क्रीन कंडक्टिव एंड कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव, तो वैसे ही ये सेंसर्स होते हैं ट्रांसमिटिव एंड रिफ्लेक्टिव। कौन से सेंसर रिफ्लेक्ट करके सेंस करते हैं, कौन से एब्जॉर्ब करके या ट्रांसमिट करके सेंस करते हैं। ओके, देन रेन सेंसर, इसके ऊपर अगर पानी डालो तो वो सेंस करता है दैट यस वाटर इज़ देयर, सो रेन या मॉइस्चर सेंसर जिसको कहते हैं। देन टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर्स आर बेसिकली used for प्रिवेंटिंग एनी फायर इन द बिल्डिंग्स। ठीक है, जो छोटे छोटे सेंसर्स लगाए जाते हैं जिसके पीछे फिर वाटर फाउंटेन्स होते हैं, सो दैट इज़ टेम्परेचर सेंसर। उसके आसपास अगर हीट आप दो तो तुरंत वो सेंसर गेस कर लेगा कि यहाँ पे कुछ फायर वगैरह है, तो वो वहाँ का जो वाटर ग्लो है वो शुरू कर देगा। देन कलर सेंसर्स, ये कलर सेंस करेगा। अल्कोहल सेंसर्स, दिस आर बेसिकली यूज्ड बाय policemen to track the drink and drive cases. Gas sensors are used to sense any kind of leakage in a particular gases. Okay, smoke sensors, again these are the fume sensors or smoke sensors used to detect any fire in buildings. ठीक है, तो दो तरीके के सेंसर्स, फायर सेंसर्स यूज़ कर सकते हो आप। ओके, यू कैन यूज़ टेम्परेचर और यू कैन यूज़ स्मोक। देन LDR सेंसर्स, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस वाले सेंसर, ये ट्वाइलाइट सिचुएशन में काम आते हैं। आप चाहते हो कि रात को अपने आप लाइट ऑन हो जाए, तो ये सेंसर लगाए जाते हैं जो अंधेरा सेंस करते हैं, जैसे इनके ऊपर लाइट गिरना बंद हो जाए वो अपने आप सर्किट ऑन कर देंगे, सो लाइट विल ब्लो अप। सो दीज सेंसर्स बेसिकली वर्क ऑन सनलाइट। ठीक है, देन वाटर फ्लो सेंसर, वाटर का लेवल जानने के लिए, ये तो बहुत कॉमन सेंसर है, टैंक्स में वगैरह बिठाया जाता है। देन आईआर रिसीवर, जैसे आईआर ट्रांसमीटर है वैसे आईआर रिसीवर्स होते हैं। ओके, देन ह्यूमिडिटी सेंसर, जैसे मॉइस्चर या रेन सेंसर होता है वैसे एयर का ह्यूमिडिटी भी सेंस करने वाले होते हैं। टच सेंसर्स, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है। बेसिकली टच सेंसर्स जो होते हैं वो कंसेप्ट यूज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स में, टच स्क्रीन्स में बहुत सारे। photo transistors means light sensor once again. Okay, then the proximity sensor, मतलब उसके आसपास अगर कोई चीज़ है, मोशन में है, तो वो सेंस करता है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक मीन्स कोई बारीक आवाज़ जो हम नहीं सुन सकते, वो भी वो सेंस कर सकता है, अल्ट्रासाउंड सेंसर। देन थर्मिस्टर मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट रजिस्टर काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, so soil moisture sensor, so there are many different sensors available in the market. You can make use of these sensors to make out your small projects even. ओके, बहुत बार जो आपको प्रोजेक्ट्स करने होते हैं तो ये सेंसर में से कोई एक सेंसर पे हमारा प्रोजेक्ट या कंसेप्ट रहता है। ओके, जैसे बर्गलर अलार्म हम बनाते हैं, तो बर्गलर अलार्म कैन बी यूज्ड, जस्ट आईआर सेंसर लगाओ, एक साइड में ट्रांसमीटर एक साइड में रिसीवर। ठीक है, जैसे ही वो आईआर सेंसर को कोई हाथ डाल के ब्रेक करता है तो वहाँ पे अलार्म बज उठेगा। या उसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा सकते हैं, अगर कोई रूम में कोई चीज़ रखी है एक साइड में सिक्योर्ड और उसके सामने अगर कोई पास में आके हिल रहा है, या वाइब्रेशन सेंसर लगा सकते हैं, अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की किसी सेफ को, तो वो अपने आप ग्लो करे, ये करेगा, ब्लो अप हो जाएगा। ओके, जैसे कार्स में होता है ना, आपको पता होगा कार में जो लॉक एक देते हैं एक और, दैट इज़ बेसिकली वाइब्रेशन सेंसर फिट द कार। जो अगर कोई दरवाजे को छेड़खानी करता है या खोलने की कोशिश करता है या इवन कार को टच भी करता है, धक्का लगाता है, तो उसका भी अलार्म बजने लगता है। सो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन सेंसर्स। So sensors are also basically the electronic devices. Mostly the sensors work on light, temperature,
ओके, और वन वे और अदर, ठीक है। सो ये कुछ सेंसर्स के मैंने एनिमेशन दिखाया है, एप्लीकेशंस ऑफ सम सेंसर्स। बहुत ही छोटे एप्लीकेशंस है, जैसे ये काउंटर है, सिंपल काउंटर मशीन या वेंडिंग मशीन में लगाया जाता है, 3 सेंसर है। तो कहीं से भी अगर ये चीज़ यहाँ पे आ रही है तो एक ना एक सेंसर उसको सेंस करके काउंट कर लेगा, ठीक है। ये 3 सेंसर 3 अलग-अलग पट्टा कवर कर रहे हैं। अब उसके बाद ये दूसरा सेंसर है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगाया जाता है, जैसे जो कर्टन्स है, जो पैक है एयर टाइट, उसमें अगर आपको चेक करना है कि उसके अंदर लिक्विड या जो भी है, मिल्क है या ऑयल है, वो है कि नहीं, जो एयर टाइट पैकिंग में है, फूड पैकिंग में है। सो वो अगर आपको सेंस करना है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंपल सेंसर ओवर हियर, ठीक है। कोई भी तरह का सेंसर यूज़ कर सकते हो, मे बी साउंड सेंसर या ऐसा सेंसर जो अंदर के प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करेगा। सो यू विल लेट द थिंग्स पास। अगर पास नहीं हो पा रहा है मतलब ठीक है, उसके अंदर वो प्रोडक्ट है। अगर वो लाइट या जो भी है पास हो गया, या एनी हार्मलेस रेडिएशन पास हो गया, तो मतलब उस डब्बे के अंदर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गया सिंपल थर्मोकपल, टेम्परेचर सेंसर जैसा काम करता है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल का जो हीट है वो सेंस करके यहाँ पे वोल्ट में कन्वर्ट करके दिखा रहा है। So there are many different types of sensors. Yes, got it everyone? So this inductive sensor ये शायद टच सेंसर है, ठीक है। When you are touching something, so वो कैपेसिटिव टच या इंडक्टिव टच होता है, तो वो सेंस करता है। Okay, so finally we have done complete of the unit. Here we can say the unit is completed फॉर सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर यूनिट काफ़ी आसान था, जिसमें हॉल इफ़ेक्ट है, उसके न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद सेमीकंडक्टर का बेसिक थ्योरी, एंड देन देर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस, बेसिकली ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सेट्रा। So if you have any doubt, you can ask. What is the difference between sensor and detector? Actually, sensor and detector are not much different and also not similar. Okay, सेंसर्स आर काइंड ऑफ डिटेक्टर्स बेसिकली। ओके, जैसे वो किसी चीज़ को डिटेक्ट करना है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो, दैट इज सेंसर्स। डिटेक्टर लाइक मेटल डिटेक्टर, जैसे एयरपोर्ट्स में होते हैं। सो मेटल डिटेक्टर क्या होता है, देयर इज डोर काइंड ऑफ a shape, okay, through which you have to pass, and it detects whether you are carrying something which you should not be, like some metal weapon, okay, or a gun or maybe a knife. So what it senses? So it is a detector. That device is a detector, but a device consists of the different components to form that detector, and the basic component which is used to detect something, and that is a sensor. Okay, so basic difference between the sensor and a detector is a complete unit, it's a complete device, ठीक है। जैसे आप मॉल्स में जाते हो तो आपका पर्स वगैरह चेक किया जाता है, तो उसके बाद आपका बॉडी के ऊपर भी एक वो हॉलो जो वो ये रहता है इक्विपमेंट, जो हाथ में हैंड हेल्ड डिटेक्टर रहता है, वो घुमाते हैं। सो दैट ऑल्सो अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर या मेटल डिटेक्टर काइंड ऑफ अ थिंग, जो आपके बॉडी के इतने पास से घुमाते हैं और वो सेंस करने का कोशिश करता है कि उसमें कहीं मेटल एटम्स तो नहीं है। So that device is a detector, but that detector is working on some principle of sensing something, and that is a sensor which is fit in that device, which is actually doing the job of detection. Okay. So detector consists of the complete unit, वो जो पूरा वुडन फ्रेम है जिसके नीचे से आप जाने वाले हो, जैसे हम लोग मॉल्स में जाते हैं, तो वो पूरा जो वुडन फ्रेम है दैट इज़ अ डिटेक्टर। ओके, पर उसमें वो वुडन फ्रेम आ गया, उसके अंदर वो सेंसर आ गया, उसके अंदर लाइट आ गया, उसके अंदर अलार्म आ गया। तो सेंसर इज़ द ओनली वन पार्ट ऑफ दैट डिटेक्टर, जो कि सेंस करेगा, जो कि एक्चुअल फंक्शन करेगा, और उसके बाद वो सेंस करने के बाद जो सर्किट वो ऑन कर देगा, तो वो सर्किट जाएगा अलार्म ब्लो करने के लिए, फिर वो सर्किट जाएगा लाइट जलाने के लिए। सो दैट कंप्लीट यूनिट इज़ अ डिटेक्टर।
गॉट इट एवरीवन, समझ में आया सबको? सेंसर एंड डिटेक्टर का मतलब, जैसे कार, कार इज अ कंप्लीट यूनिट, और उसके अंदर का जो इंजन है, सो इंजन इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली टू लेट द कार गेट ड्रिवन. Okay, engine is the main part of the car so that the car is getting driven. Okay, car is running. So वो बात हो गई. Sensor is the heart of the detector. So detector is a complete unit. आपने कोई डिटेक्टर बनाया, कोई पोर्टेबल डिटेक्टर बनाया, तो वो डिटेक्टर इज अ प्रोडक्ट, डिटेक्टर इज अ प्रोटोटाइप, डिटेक्टर इज अ डिवाइस, और उसके अंदर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे, जैसे कोई लाइट जलेगा डिटेक्शन बताने के लिए, या कोई आवाज़ आएगा साउंड लगाओगे, सो ये सब चीज़ें, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कुछ ना कुछ सेंस करोगे आप उस डिटेक्टर में. जैसे वाइब्रेशन डिटेक्टर है तो वाइब्रेशन सेंसर आपको लगाना पड़ेगा. जैसे साउंड डिटेक्शन करना है आपको, जो साउंड सेंसर लगाते हैं, है ना? सो दैट इज़ अ सेंसर बेस्ड डिटेक्टर. सो सेंसर इज़ द हार्ट ऑफ द डिटेक्टर, बट उसके अलावा उसमें और भी चीज़ें होती है. तो डिटेक्टर इज़ अ सुपर सेट एंड सेंसर इज़ अ इम्पॉर्टेंट सबसेट ऑफ दैट सुपर सेट. गॉट इट एवरीवन? Yes. Okay, any other doubts if you have? If we don't have any doubt, then we can go for the next unit which we are going to begin, and that is electron ballistics. So again I am repeating, in your CAE2 syllabus you will be having lasers and semiconductors both. Yes, so I'm starting the PPT of the next unit, last unit of this semester's physics syllabus, and that is electron ballistics. Again, electron ballistics. The name indicates the science of, I can say, studying electron motions in different fields. That is called electron ballistics. Okay, so so this is first unit actually according to the syllabus. Okay, the smallest one we can cover up the unit within some 4 hours. Means before your last teaching day we can finish up the complete syllabus. These are again the same books. So now let us see electron ballistics and optics. So as I told you, ballistics means the science of motion. Okay, and electron ballistics means the science which studies the electron motion. Now, electron is a charged particle. Electron is a representer of different charged particles. The particles like subatomic particles, protons, even then some alpha particle, beta particle, some nucleus, or some ions, positive ions, negative ions. So electrons are basically representing those all subatomic particles carrying charge and mass. Okay, so if such charged particles are placed in different fields, like there are electric fields, there are magnetic fields. Electric fields can also be parallel, perpendicular at some angle. Magnetic field can also be parallel, perpendicular at some angle. Then there can be a cross consideration of electric and magnetic field both together. So what will happen to those charged particles? Where they will move? So that is the concept of electron ballistics. And depending upon that motion, the different devices are also constituted, and those devices we generally use them in our practicals, like we have used CRO. Okay, so these are basically electron ballistic device. The next is electron optics. Now what is electron optics? When the electron wave, now I'm saying electron wave, from which principle can I say electron wave? Do you know? It was in quantum mechanics.
How can I say electron wave? Electron is a particle, but I am still saying the electron wave can show some of the phenomena like light waves. Yes, matter waves. That's the concept of matter wave given by, who gave the concept of matter wave? याद है क्या? किसने दिया था कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव कि इलेक्ट्रॉन भी अगर मोशन में है तो उसके साथ भी वेव रह सकती है? हु सेड दैट? De Broglie, very good. So Louis de Broglie proposed the concept of matter wave. So that's why we can say the electron wave can also act like light waves. जैसे लाइट वेव्स दिखाते हैं ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वैसे इलेक्ट्रॉन वेव्स भी ये सब फिनोमेना दिखा सकता है. So वो फिनोमेना जहाँ पे स्टडी होता है, that branch is called electron optics. Okay. So we are going to see them one by one. So पहले इलेक्ट्रॉन बैलिस्टिक्स देख लेते हैं. इलेक्ट्रॉन बैलिस्टिक्स मीन्स मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स. सो जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्टरीज भी कहा जाता है. तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती कैसे है? तो ये है दो प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट, निगेटिव प्लेट. उनको एक डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर किया है. सपोज ये उनके बीच का डिस्टेंस है एल. ठीक है. तो ये दोनों का पोटेंशियल होगा V. तो V अपॉन एल विल बी योर E, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट करते हैं? जस्ट वी टेक टू पैरेलल मेटल प्लेट्स having two potentials like positive and negative. If we separate the two plates by some distance L, and if we have the potential of the two plates like V1 and V2, then difference in the potential is V1 minus V2. suppose V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो ये V1 minus V2 को अगर V बोलेंगे potential difference, तो that potential difference upon this distance between the plates is nothing but electric field. और ये पैरेलल कैसे बोलेंगे इसको? दैट एक चार्ज है उसके बीच में जो इस डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल या पैरेलल. तो ये हो गई पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की केस. ठीक है. तो सपोज करो कोई तो भी आपका मटेरियल है, जैसे कोई तो भी वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, और उसको आपने इस तरह से बैटरी लगाया, तो फिर ये बन गया पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसमें क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन और द चार्ज फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ. स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब ये देखो, ये चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये निगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव चार्ज विल डेफिनेटली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द निगेटिव प्लेट, and hence what will happen? It will go in a straight line towards the negative plate. So in parallel magnetic field, electron follows straight line path. That is the concept basically. Understood all of you? समझ में आया? सो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड which is having its direction vector E parallel to the motion of the charged particle. So what happens? The particle will also move straight parallel towards the opposite plate. अगर ये इलेक्ट्रॉन है, निगेटिवली चार्ज है, तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा. अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कोई आयन है तो वो निगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा. पर दोनों क्या होंगे? सीधा सीधा मूव करेंगे. तो द पार्टिकल फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन पाथ इन पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसमें क्या फ़र्क है? Here again the electric field is created by the same way. There are two plates which is positive and negative. दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V. दोनों के बीच का डिस्टेंस है सपोज L. तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया E इक्वल टू V बाय L. ठीक है. अब हमने पार्टिकल जो डाला है इसमें वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डाला है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ये तीन एरो इधर जा रहे हैं, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है. और हमने पार्टिकल डाला है, ये वाला जो सांप जैसा एरो है ना, वैसा हमने वहाँ पे पार्टिकल डाला है. तो ये एक दूसरे को हो गए परपेंडिकुलर. अब व्हाट हैपन्स इन द परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड? द पार्टिकल मूव्स इन अ कर्वेचर पाथ, जिसको कर्विलिनियर पाथ या पैराबोलिक पाथ कहते हैं. तो ये पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो सीधा निकल जाता. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसलिए पार्टिकल टूवर्ड्स द अपोजिट फील्ड कर्व शेप में डिफ्लेक्ट होता है. दिस इज पैराबोलिक पाथ. ये अल्फा पार्टिकल है इसलिए ये देखो, ये इधर निगेटिव प्लेट की तरफ गया. बीटा पार्टिकल होता तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाता. क्योंकि ये गामा न्यूट्रल होते हैं तो वो सीधा निकल गए. तो ये था पैरेलल. तो ये टूवर्ड्स द प्लेट जा रहा है सीधा सीधा स्ट्रेट. ये है परपेंडिकुलर. ये अब टूवर्ड्स द प्लेट जाएगा लेकिन कर्व होके, दैट इज पैराबोलिक पाथ. Okay, so always remember in a perpendicular electric field the particle follows a curvilinear or parallel parabolic path, sorry not parallel, parabolic path.
and while in parallel electric field the particle follows straight line path. अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा. अब एट एन एंगल थीटा, अब थीटा मतलब क्या, दो थीटा तो हमने कवर कर लिए, पैरेलल एंटी पैरेलल उसमें हो गया 0 या 180. अब उसके बाद परपेंडिकुलर मतलब 90 या 270, तो ये एक्चुअली चार थीटा कवर हो गए. अब हमारा अगर एंगल इन चारों से अलग है, 45 है, 60 है, 30 है, सो फिर पार्टिकल का क्या होगा. तो सपोज़ ये एक एक्यूट एंगल या ऑप्टूस एंगल में मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल डाला. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट, फिर से वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया. बस अब पार्टिकल ना ऐसे डाला है ना ऐसे डाला है, पार्टिकल इस साइड से कहीं से तो भी डाला है विथ सम एंगल थीटा, एंड थीटा इज डिफरेंट दैन दीज फोर एंगल्स. देन व्हाट विल हैपन, अगेन इट विल फॉलो अ कंप्लीट पैराबोलिक पाथ. अब ये पूरा का पूरा एक पैराबोला कंप्लीट करेगा. ठीक है, पिछले इसमें वो सिर्फ हाफ पैराबोलिक पाथ था, जहाँ से इसने एंटर किया वहाँ से उसका कर्व चालू हो गया. अब इसमें ये पूरा पैराबोलिक पाथ कवर होगा, और इस तरह के पैराबोलिक पाथ को एक नाम होता है, you people have studied that one in gravitational chapter. What this path is called as, can anyone tell me? How does this path look like to you? It's a parabolic path, but it's having a special name. ये कुछ पर्टिकुलर पाथ जैसा दिखता है, जिसको एक अच्छा खासा नाम है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड में यूज होता है. डू यू रिमेंबर? वहाँ पे एग्जाम्पल दिया करते होंगे आपके टीचर्स कि आपने अगर एक स्टोन फेंका है ऊपर हवा में किसी टेढ़े एंगल में, सीधा ऊपर नहीं, टेढ़ा, तो वो स्टोन थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा और फिर वापस नीचे आएगा. तो उस पाथ को क्या कहते हैं? डू यू रिमेंबर एनीवन? नो वन रिमेंबर्स? Trajectory, not exactly. Trajectory means path, any path. इसको एक स्पेशल नाम है. You need to keep your memory sharp. You people are students. अगले और 4 साल के लिए आपको आपका मेमोरी बहुत शार्प रखना है. याद रखो, पढ़ाई हुई चीज़ें कभी भूलनी नहीं है. What do we call that path? Now I have written here parabolic path. It's okay if you can use the word parabolic path because it's a parabola, of course. But this is having a special name and that is called projectile path. याद है क्या projectile motion, projectile path? When a stone is thrown at some angle 60 degree, तो वो इस तरह से पूरा हाफ कर्व करके जाता है. So that is projectile path या projectile motion. So this electron or the charged particle which is being thrown in the electric field at some angle other than these four angles, then it will also follow the projectile path. अब ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन अगर निगेटिव प्लेट की तरफ थ्रो किया है तो पूरा प्रोजेक्टाइल पाथ बनेगा, इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव प्लेट की तरफ थ्रो किया है तो वो प्लेट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. ओके, सो प्रोजेक्टाइल पाथ लाने के लिए आपको जो चार्ज पार्टिकल है दैट शुड बी थ्रोन इन द डायरेक्शन of the similar charge plate. If it's electron, throw it in the negative direction of the plate. If it's a positive charge, then throw it from like this, something. Okay, and in this path much more the action of kind of gravitational projectile motion is followed. Understood everyone? सो तीन तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने तीन तरह के पाथ देखे, जिसमें से दो तो पैराबोलिक ही पाथ होते हैं, पर एक को खासतौर पे नाम होता है प्रोजेक्टाइल पाथ. अब नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड. ओके, द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स इन अनदर सॉर्ट ऑफ अ फील्ड एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंट्ज फोर्स. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा लॉरेंट्ज फोर्स. क्या होता है लॉरेंट्ज फोर्स? The force experienced by a charged particle inside a magnetic field is called Lorentz force. So अब magnetic field में क्या होगा charged particle का? So what happens? Basically सबसे पहला magnetic field देखेंगे parallel magnetic field. अब पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में नो इफेक्ट होता है. नो इफेक्ट होता है मतलब अगर आपका पार्टिकल पहले से ही सपोज नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स नॉर्थ टू साउथ इस तरह से बोली जाती है. सो इफ़ योर पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इफ़ योर मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देन एक्चुअली इट्स हैविंग नो इफेक्ट ऑन द पार्टिकल. तब वो पार्टिकल जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा.
ये हमेशा के लिए याद रखो। व्हेन यू आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड, and if you want the biggest magnetic field surrounding us, that is earth's magnetic field, should not cause any trouble in our experiment, then we should align our experiment in the direction of earth's magnetic field. ठीक है, अगर आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने यूज़ किया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे हम हॉल इफेक्ट करते हैं, और आप चाहते हो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारे एक्सपेरिमेंट को ख़राब ना करे, क्योंकि अर्थ इटसेल्फ इज़ अ आई कैन से मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, अर्थ में दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और अर्थ में हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चलती रहती है, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल एंडिंग टू साउथ पोल। So, if you don't want that Earth's magnetic field should disturb your experiment, then what you can do is you can align your experiment in the direction of Earth's magnetic field, and that is north to south. तो आप अपने एक्सपेरिमेंट को अर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर सकते हो, तब अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर कोई असर नहीं करेगा। समझ में आया सबको? डू यू गेट इट? यू यू नो दिस ना कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चलते रहता है आजू बाजू में, पता है ना सबको? सिंपल एक्सपेरिमेंट किया होगा सबने बचपन में, एक वाटर कंटेनर में, टब में या बकेट में पानी लो, और उसमें एक छोटा सा आपका जो रेज़र होता है, ब्लेड, शेविंग रेज़र, उसको डाल दो, वो वहाँ पे फ्लोट करेगा, एंड इट विल गेट सेटल्ड ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। वो थिन मेटल जो है वो एक रेजर जैसा काम करेगा ऑलवेज, एंड इट विल गेट सेटल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ। यस, यू रिमेंबर? प्लीज एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, थांबना, लेक्चर होऊ दे ना. Yes, got it everyone? So parallel magnetic field causes no effect. Now next magnetic field is perpendicular magnetic field. Now what happens in perpendicular magnetic field? Here I am showing to you. So how on this side the magnetic field is created? So you can see the dots. Dot दिख रहे हैं सबको? The dot and the cross, they represent perpendicular magnetic field perpendicular to this screen. Okay, so dot is also perpendicular, and cross, this plus दिख रहा है ये actually cross है, this is also perpendicular. पर कैसे? dot means coming out of paper and cross is going inside the paper. So ये क्या है? ये एक प्लेन ऑफ यूर स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड आपने डॉट लगाई है या क्रॉस लगाई है, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन लगाई है। मतलब इस स्क्रीन को मैं अगर टच करूँ मेरी उंगली से, तो मैं जैसे टच कर रही हूँ ना, वो डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? तो वो हो गई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? द पाथ इज सर्कुलर पाथ। ओके, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। अगर डॉट मैग्नेटिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब उल्टा सर्कल घुमा रहा है, तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इस तरह से घूमेगा। समझ में आ गया सबको? So in the magnetic field perpendicular direction, the path covered by the charged particle is basically circular. और ये डॉट और क्रॉस कैसे याद रखना है? डॉट मतलब परपेंडिकुलर टू द पेपर, पेपर इन द सेंस जब आप लिख रहे हो तो आप पेन कैसे पकड़ते हो? परपेंडिकुलर टू द पेपर पकड़ते हो। ठीक है, सो अब वो पेन टूवर्ड्स द पेपर है तो वो हो गया क्रॉस, एंड कमिंग आउट ऑफ पेपर है तो वो हो गया डॉट। ये डॉट और क्रॉस याद रखने के लिए यू हैव टू रिमेंबर द एरो। अगर एरो आपके तरफ आ रहा है तो आपको एरो का टिप दिखाई देगा जो एक डॉट होता है। सो दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम द स्क्रीन या फ्रॉम द पेपर, सो दैट इज डॉट मैग्नेटिक फील्ड। और अगर एरो आपसे दूर जा रहा है, तो आपसे दूर वो पेपर के अंदर या आपके सामने की स्क्रीन के अंदर जा रहा है, सो दैट इज अ क्रॉस। जब आप एरो को पीछे से देखोगे तो पीछे में उसके फेदर्स लगे रहते हैं, तो वो फेदर्स क्रॉस में लगे रहते हैं। ठीक है, जनरली तो वो क्रॉसेस दिखाई देंगे। सो एरो इज मूविंग अवे फ्रॉम यू, सो यू आर एबल टू सी द क्रॉसेस। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डॉट एंड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। कैसे याद रखोगे? ठीक है, तो पेपर के विथ रिस्पेक्ट टू, या मेरे लिए मेरे सामने मेरी स्क्रीन है, तो जो स्क्रीन का डायरेक्शन है उसको परपेंडिकुलर डॉट डायरेक्शन है मेरा डॉट या क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। आर यू गेटिंग एवरीवन? समझ में आ रहा है?
सो वो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिखाने का तरीका होता है, या तो डॉट से दिखाओ या क्रॉस से दिखाओ, जब आपका इलेक्ट्रॉन आपके स्क्रीन के प्लेन में चल रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन द स्क्रीन चल रहा है, ठीक है, पैरेलल टू माई स्क्रीन। तो ये डॉट या क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में डॉट में ये ऊपर जा रहा है तो इस तरह से घूमेगा, मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्रॉस में ये नीचे जा रहा है तो ये सीधा घूमेगा, मतलब ये हो गया क्लॉकवाइज। गॉट इट? प्लीज रिस्पॉन्ड। I won't get that you are getting it or not unless and until you respond to me. समझ में आया सबको? Okay, so this is the diagram which represents the motion. तो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये सपोज परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गोल गोल डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, गोल गोल घूमेगा बेसिकली। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर से गोल घूम रहा है तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो उल्टा घूमेगा। सो इट्स डिपेंड अपॉन चार्ज, ठीक है। तो आपको बस एक ही याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड में वो ऊपर जाएगा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में नीचे जाएगा, बस इतना ही याद रखो। फिर इसकी जगह अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको उल्टा कर दो, ठीक है। सो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं होता, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन होता है। और अब तीसरा है मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विच इज अगेन डिफरेंट दैन 0, 90, 180, 270, ठीक है। तो वो वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जैसा केस था वैसे अब मैग्नेटिक फील्ड वाला केस है कि ऐसे किसी एंगल से अगर हमने डाला जो कि ना तो पैरेलल है ना जो परपेंडिकुलर है, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है, मतलब 0, 180 नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब 90 to 70 नहीं है, तो ऐसे एंगल में क्या होगा, तो ऐसे एंगल के लिए जो पाथ कवर करता है पार्टिकल वो होता है सर्कुलर प्लस ट्रांसलेशनल। तो ये इस पाथ को कहते हैं हेलिकल, इट्स कॉल्ड स्पाइरल और हेलिकल पाथ। फॉर एग्जांपल स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को ध्यान से देखो तो स्प्रिंग एक एक सर्कल भी कवर कर रहा है, और साइड बाय साइड जब एक सर्कल कवर होता है तो वो एक पॉइंट आगे खिसकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिच, दो सर्कल के बीच में जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज कॉल्ड पिच। तो द सर्कल हैविंग रेडियस एंड अ पिच दैट इज कॉल्ड स्पाइरल पाथ या हेलिकल पाथ। सो द मैग्नेटिक फील्ड एट अदर एंगल्स द पार्टिकल फॉलोज अ स्पाइरल और हेलिकल पाथ। तो याद रहेगा सबको, ये चार तरह के पाथ पार्टिकल फॉलो करता है इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड्स पैरेलल परपेंडिकुलर एट एन एंगल, magnetic field parallel perpendicular at an angle, okay. So one more I am showing the comparison, magnetic field comparison circular and helical का। ये देखो, circular मतलब circle is getting completely rotated and ending at the same point where it has started. Helical means the circle is rotated and the point is getting traveled one step next. तो एक एक सर्कल बाद वो एक एक स्टेप आगे जा रहा है, सो दैट्स अ स्प्रिंग मोशन। स्प्रिंग जैसे होता है ना स्पायरल, तो सर्कुलर पाथ में वो उसी प्लेन में रह जाता है, हेलिकल पाथ में वो एक एक स्टेप आगे भी निकलते जाता है। गॉट इट एवरीवन? तो ये हो गया 90 डिग्री वाला केस, मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया अदर देन 0, 90, 180, 270 वाला केस, मतलब एट एन एंगल थीटा वाली फील्ड, ठीक है। So I think we can stop over here. We have explained almost 6 different paths in 6 different cases of the electric and magnetic fields. Have you understood everyone? I can see 60 students are there in the class. So let me take a quick roll call. Do not leave.